السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ میرے مہمان ہیں جناب شاہ صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کے شو میں شامل ہے بھوک، افلاس اور پاکستان، سفرناک اور خبروں پر تبصرہ. مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے مہمان جناب شاہ صاحب کے ساتھ. جی شاہ صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ حال چال تو میرا ٹھیک ٹھاک. اچھا، آئی ایم فائن. اچھا، یہ لوڈ شیڈنگ جو اچانک ختم ہو گئی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ یہ تو کریڈٹ ہے نا بھائی، آپ کے بھائی نے ختم کی ہے. یعنی جوتے پڑیں تو حکومت چلتی ہے. ڈنڈا ماریا پھر بتی کھولی ساڈی. یہ عوام کا جواب دیں، عوام کیا کہہ رہی؟ یہ عوام ہے جنی اتنے بتی گئی نا، عوام اسی طرح دی ہو گئی. اور یہ عوام نہیں، یہ چڑیل ہے، چڑیل ٹوپی والی. انہاں دی رنگ بازی پھڑی گئی انیاں سالاں تو سن نیڑیاں وچ رکھیا. بچے ساڈے امتحان میں پاس نہیں ہوئے، بتی گئی ہے. اسی جلوس کٹے نے، اسی سڑکاں تے آئے ہیں تے بتی تانوں بھی پڑھے لکھے لوگوں نے. ویسے آغاز گجرانوالا نے کیا تھا، میں یہ کریڈٹ گجرانوالا کو ہاں جناب، انہاں دھون دے گوڈا رکھے ہے، انہاں تھلے باں باں کیتی ہے. پلوان جی ہن بتی آئے گی، اس وقت بتی آن ڈئی ہے. ہماری رات دن کوششوں کے بعد ہم نے یہ قوم کو خوشخبری سنا. ابھی بھی آپ ٹھیک ہو جائیں ورنہ یہ پھر مارچ کرنے یہ والے کچھ ہیں. نہیں کر سکتا. امریکہ آپ کو رگیدتا چلا جا رہا ہے، آپ کی بے عزتی کرتا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن نیا الزام لگا دیتا ہے. ہماری حکومت نے کوئی تگڑا بیان، کوئی تگڑا زوردار جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا تگڑا زوردار جواب؟ اوباما کو پکڑ کے چپیڑیں کرا دوں. آپ مجھے پٹوانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی. آپ نے اس کے گارڈ دیکھے؟ کس کے گارڈ؟ اوباما کے. اور کس کے؟ الیکشن کا سال کہا جا رہا ہے، اگلا سال. آپ نے کیا پیش بندی کی؟ میں آپ کو فال نکالنے والا طوطا لگ رہا ہوں. طوطا نہیں ہے، بڑا بطخہ ہے. اس نے ایک لفظ کہا کہ بطخہ ہے. ہاں جی. اس میں کیا مزہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ چائنا کی آبادی 1 ارب 35 کروڑ ہے اور وہاں پر 14 منسٹر ہیں. انڈیا کی آبادی 1 ارب اور 27 کروڑ ہے، وہاں پر 32 منسٹر ہیں. امریکہ کی آبادی 32 کروڑ ہے، وہاں پر 14 منسٹر ہیں. پاکستان جیسا بدنصیب ملک جہاں پر آپ جیسے حکمران مسلط ہیں ہمارے پر، وہاں اس کی آبادی 18 کروڑ ہے اور 96 یہاں منسٹر ہیں. ایک منسٹر کا سالانہ خرچہ 16 کروڑ روپے ہے. جان چھڑ گیلانی، تیری بڑی مہربانی. واہ 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 واہ، کیا بات آپ نے کہی. بہت خوبصورت بات کی ہے نیل کپور کی بیوہ. جواب نہیں دیا ابھی تک آپ نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جان چھوڑو گیلانی، تیری مہربانی. تیری مہربانی. یہ کیا مطلب؟ وٹونی. بٹالو جو ایک نمبر بڑی لے بیٹھے. جی جناب. میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جس طرح تیزی سے ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی انہوں نے سوچا اس معاملے میں بھی؟ ماشاءاللہ کتنے ڈیسنٹ اور سوبر ہو کے آپ سوال کر رہے ہیں. تو اور کیا کریں، وہ آپ کی طرح سوال کریں؟ نہیں، یہ ان جیسے نوجوان ہوتے ہیں اسٹیج پہ جب بھی اسپیچ کرنے کے لیے آتے ہیں. Good evening, ladies and gentlemen. Today the topic under discussion is یہ کیا یہ ہو جاتا ہے ان سے، پتہ نہیں مجھے نہیں. یہ ان سے پوچھیں یہ کیا ہے. جواب دیں. ان کا ڈپریشن میں جو بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. آہستہ بولیں نا، آپ ڈراتے کیوں ہیں مجھے؟ جواب دیں. مجھے نہیں دیا تو میں جوتی لا لینی، تو ڈر لگتا ہے. یہ کہیں جناب عزت مآب، آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے تو لوگ جاننا چاہتے. اچھا جناب عزت مآب، یہ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم جو اس وقت ملک میں ڈپریشن ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، گانے گائیں، اور اگر لوگ نہ بھی سننا چاہیں تو آپ ان کو سنائیں. چلو 1 2 3 4 میرے ساتھ گانا. کسی ڈسکو میں جائے، کسی ڈسکو میں جائے، کسی ہوٹل میں کھائے، کسی ہوٹل میں کوئی دیکھنا لے ہم کو یہاں، کوئی دیکھنا لے ہم کو یہاں، کہیں گھوم کے آئے ہم، کہیں گھوم کے آئے ہم. چلو عشق لڑائیں، چلو عشق لڑائیں، چلو عشق لڑائیں. چلو شرم کریں، چلو عشق لڑائیں، چلو شرم کریں، چلو شرم لڑائیں، چلو عشق لڑائیں. ایک کام کرو نا، عشق لڑاؤ یا شرم کرو. ایک کام کرو نا، عشق لڑاؤ یا شرم کرو. یہ تو میری بات ریپیٹ کر. یہ تو میری بات ریپیٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ نئی بات کرو نا. نئی بات کرو نا. ایسے تو پرفارمنس ہی ختم ہو جائے گا. ایسے تو پرفارمنس ہی ختم ہو جائے گی. حد ادب گستاخ. ادب حد ادب، ادب حد ادب، ادب حد ادب، ادب حد حد حد.
हम शहजादा सलीम हैं। वो तो हम हैं। हम हैं। हम शहजादा सलीम हैं। तुम शहजादा मसली हो। क्या गुस्ताखी है? गुस्ताखी तो आपने की है। क्या? अनारकली के साथ। अनारकली का मौकफ पेश किया जाए। अली जा, आपने उसके साथ बहुत बड़ी खत मारी है। एंड यू हैव टू पे फॉर इट। चलो थे कान फाड़ ले। सर पहले पैसे दसो किन्ने दोगे अब्बा जी, हुणे कान फाड़ लेंगे। क्यों नहीं? पैसे दो, कंन फड़ा के जुतियां भी मारांगे। ये क्या बेहूदगी है? चौबदार जी अली जा, हम शहजादा सलीम है, तुम अपनी बीवी तू को। इथे लिखा के ना गाल च पाला। हम शहजादा सलीम है। हम शहजादा रशीद हैं। तो हम क्या हैं? तुम शहजादा मजीद हो जो। अली जा, क्या है? बताओ ना अनारकली का। चौबदार जी सरकार। कन्धार की दीवारों से लेके बर्मा की दीवारों तक रियासत से पूछा जाए। अब भैया इलाका नवा तुझे क्या बर्मा है केड़ा नहीं क्या? मैं जिंदगी से पहले नहीं सुनया अब्बा जी। हमारे जाहो जलाल को ललकारा जा रहा है। पहले बड़े तो हार पहन दे। चौबदार जी सरकार। तुम्हारी अहलिया कुछ बढ़ती जा रही है। हौली हौली तो मुछां निकल आउणियां जी, ने ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ तेरे तो सिर पई ही है ना। गुस्ताख, हत्ते अदब। हद्दे अदब, ओ अदब हद्दे अदब, ओ अदब हद्दे अदब, ओ अदब हद्दे हद्दे हद्दे। मान सिंह किधर है? मान सिंह जी फैसलाबाद लूमा ते लग गया। अब्बा जी 4 पैसे वटदा तो फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਨੇ। चौबदार नहीं, आर यू सिंगल? यस सरकार मेरी जोजा है, तुसी अन्ने तो नहीं हो। मैं तो अन्ना नहीं, तेरी जोजा ने अन्नी पाई है। चौबदार नहीं, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम भी सेटल हो? वो सर ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਦਾਈ ਲਵਾ ਦਿਓਗੇ। ਦਵਾਈ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਜਨ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸਲੀਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਆਲਮ ਪਨਾਹ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਓ। ਚੌਬਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਲੀਮ? चौबदार नहीं, ये दरबार च दिल लगी फिल्म शुरू हो गई। और चौबदार नहीं, एक बात करना, इधर या उधर। शाह जी ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत का कोई इतबार नहीं, ਉਹਦਾ ਤਾਂ फिर भी टूटा फूटा तख्त का है। शाह साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप हुक्म करें चौबदारनी जी। आलमपना ने हम पे बहुत जुल्म किए हैं। मैं इसको कत्ल कर दूंगा। नहीं सर, हम पे खुद बड़े जुल्म हुए हैं, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि आपका दरबार खरीद लेते हैं। बोली लगाई जाए। चलिए। ये क्या हिंदुस्तान की तख्तो ताज का मजाक तमस्कर उड़ाया जाएगा? अब्बा जी मेरे को चपेड़ा ना खाना तुसी। वो 4 पैसे आउंडे ने आन दियो किधर आदमी, ये तुम्हारा अब्बा जी है? सर समझीदा होंदा पैसे आ रहे ने तो अगो मना कर रहे ने। कितने में बेचोगे? कितने में? सर लाखां करोड़ां अरबां डॉलर लगे ने इहदे ते तुहानू ते पता ही है फिर। चलो यार खूब बोली शुरू की जाए। जी बिस्मिल्लाह, आप आगाज करेंगे। 70 रुपया। 70 रुपया एक। कितना? 70 रुपीज। भाई जी ये दरबार है कि लंडे की जैकेट खरीद रहे हो? 70 रुपीज 1, 70 रुपीज 2, 71 रुपए, 71 रुपया एक, 80 रुपया, 85 रुपए, ए भाई जी कट पीसा च लै रहे हो। 185 रुपए। लो जी, वाह जी वाह, बस यार खत्म करें 185 पे। नहीं जी, बहुत अच्छे, तुसी भी डन करा रहे हो 185 ते बड़ी गल। 500 पे चला गया। 750 रुपया, 750 800, 800 रुपया एक, 1000 रुपया, 1000 रुपया एक, 1500, 2000, तो 2500। 2500। ठीक है, तुम ले लो। अच्छा भाई 2500 पे करो और दरबार पे कब्जा। इन्ने पैसे होंगे सरकार इन्होंने धक्के खाने से। हम इस दरबार का 1 लाख रुपया देंगे। लाख? अनारकली समेत। अनारकली किथे है आली जा? वो अज हुंदी ते भूखे मार दे। हमारे रख रखाव, हमारे जाहो जलाल का ख्याल रखा जाए। आलमपना क्या है? अंग्रेजा ने मार मार के ਤੁਹਾਡੀ जाहो सुजाती। आली जा, क्या है? आप बंद गटर खोल लेते हैं? बिल्कुल, और बगैर वांस के। वेल डन, वो तो बड़े टैलेंटेड है, हमें तो पता नहीं। ये अलीजान इंजीनियर ने लैपटॉप ते गटर खोल देते हैं। और इन्हों का एड्रेस भी ईमेल इंजी है, www.dakka.com। आली जा, क्या है? वो अनारकली दी गल ते विच ही रह गई। ये गटरा जो भी उन्होंने ही लबन डे। आली जा, क्या है? जोधा बाई को मिस नहीं करते आप? ਤੁਹਾਨੂੰ औरतों तो अलावा कोई फ्लेवर नहीं यार। ਤੁਸੀਂ सिर्फ मुगलों जो औरतें ही पढ़ी हैं। अब तो पर्सनल हो गया ना पता, ये तो पर्सनल हो गया। तो दिनों साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज सफरनाक में हम आपको ले चलेंगे सेंट्रल पंजाब यानी वस्ती पंजाब के एक जिले टोबा टेक सिंह में। टोबा टेक सिंह फैसलाबाद के और झंग के करीब दो बड़े अजला के दरमियान वाक़े है। ये सारे का सारा इलाका सांदलबार ही का इलाका था। आपको याद होगा फैसलाबाद डिस्कस करते हुए हमने सांदलबार का तस्करा किया था। और टोबा टेक सिंह की वजह तस्मिया वो एक टोबा पंजाबी जुबान में कहते हैं कुएं को, एक ऐसा कुआं जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाया करता था। ये एक लेजेंड है जिसका तज़किरा बहुत ज्यादा मुस्तनद तारीखी किताबों में नहीं मिलता, लेकिन ये फिलैंथ्रोपी की एक निहायत उम्दा दास्तान है और मैं समझता हूं तारीख में इसका तज़किरा होना चाहिए और इस पर तलबा को, जो तारीख के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि टेक सिंह कौन था और क्या मुहर्रिकात थे उसकी। इस खिदमत खल्क का आलम यह है उस टोबे से वो पानी हमेशा, क्योंकि ये वो दौर है जब इस इलाके में नहर नहीं थी, ये नहर बहुत बाद में आई और इसके पेश नजर वो ये किया करता था कि इस टोबे में इकट्ठा हो जाने वाला बारिश का जो पानी था उसे जाया होने से बचाया करता था। ये अपने खर्च पर मटके पानी के स्टॉक किया करता था। चूंकि ये जंक्शन था, हर बड़े शहर को सड़कें यहां से आती जाती थी, तो ये लोगों को, मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था। अगर आज के दौर में मैं समझता हूं इसके ऊपर रिसर्च की जाती तो पॉस्ट्यूमस इसको नोबेल प्राइज दिया जाता। ये इतना शानदार आदमी था। टोबा टेक सिंह की 3 तहसीलें हैं, एक गोजरा, दूसरी कमालिया और तीसरी मेन खुद टोबा टेक सिंह शहर है। जी जनाब। टोबा टेक सिंह के मशाहिर में जो सबसे ज्यादा मशहूर है उनमें सारे छोटू राम हैं, जो अंग्रेज दौर में वजीर माल थे और उनके नाम से वहाँ पे गांव भी आबाद है छोटू राम के नाम से। और इसके अलावा बरतानिया के पार्लियामेंट के मेंबर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, इसके अलावा वजीर इत्तलात खालिद अहमद खरल साहब, गयासुद्दीन जांबा साहब, चौधरी इशफाक साहब और इसके अलावा चौधरी अब्दुल साहब, साबिक IG पंजाब चौधरी शौकत हिजाज साहब और इसके अलावा चौधरी सरदार अहमद IG पंजाब रह चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी दाखिला हफीजुल्लाह इसाक साहब रह चुके हैं, चौधरी अमजद अली वड़ैस साहब पार्लियामेंट्स के ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले रियाज अहमद फतियाना साहब, उनकी मिसेज वजीर बहबूदाबादी रह चुकी हैं आशफा रियाज। ये तमाम लोग जो हैं ये टोबा टेक सिंह से ताल्लुक रखते हैं। और इसके अलावा सियासत के हवाले से अहम हमजा का जिक्र करता हूँ और फिर हाजी अलबेला मरहूम हनी अलबेला के वालिद, फिर हॉकी के हवाले से बड़े बड़े टोबा टेक सिंह के जो रिलेटेड साथ है 25 किलोमीटर दूर गोजरा का इलाका है, वहां से बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान हॉकी के कोच भी रह चुके हैं और खिलाड़ी भी। 92 वो ओलंपियन पैदा किए इस एक छोटे से कस्बे ने, मैं समझता हूँ। हॉकी में मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा कि उस्ताद अहमद रोडा साहब जो ओलंपिक्स खेल चुके हैं, अकबाल बाली है, मंजूरुल हसन है, शहबाज सीनियर है, शहबाज जूनियर है। गोदरे वाले ते कपड़े हाकी है ना तो क्या वो कैसे हाकी फड़ के नहीं लगी ठोक वो सारा हाकी दे उथे इन्नी खेली जाती हुंदे बकरे ने अपनी टीम बना ली इन्हू येलो कार्ड दिखाया ही गोदरे वाले तो फोन नहीं रखे हाकी च सिम पोई। अच्छा, एक किसान कॉन्फ्रेंस हुई थी 70 में गालबन 1970 में किसान कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी किसानों की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मौलाना बिशानी साहब और उसके सदर थे फतेह मोहम्मद साहब। यानी किसानों की मज़ाहमती तहरीक जो है उसका आगाज इसी सरजमीन से हुआ था। यहाँ पर तारीखी नौयत की जो बात है वो ये कि उस दौर में इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के बाद इस शहर का नाम लेनिनग्राड रख दिया था। मॉस्को के बाद लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड ये बड़े अहम शहर थे सोवियत यूनियन के। तो इसके जवाब में सुन्नी तहरीक ने एक कॉन्फ्रेंस की थी और इसके जवाब के तौर पे इस शहर का नाम दारुस्सलाम रखा गया था। लेकिन टेक सिंह की खिदमात को देखते हुए उसका नाम चेंज नहीं हो सका, बहरहाल इसका नाम चेंज किया गया, लेकिन इसका नाम टोबा टेक सिंह ही रहा है। टोबा टेक सिंह में पोल्ट्री का जो सबसे बड़ा एरिया है वो कमालिया। कमालिया से पोल्ट्री जो है पूरे पंजाब में सप्लाई की जाती है और खद्दर के हवाले से कमालिया का एक नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इसके अलावा टोबा टेक सिंह में पानी का बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से जमीनें जो है वो बंजर हो रही हैं। दूसरा, खवातीन में गंदा पानी होने की वजह खवातीन में छाती का कैंसर और बच्चों की शरह मुआत और हेपेटाइटिस C जो है वो तेजी से वहां पे फैला। जी जनाब। इसी तरीके से सर वहां पर जो एक चीज जो मेरे भाई नाम बता सके
کہ پیر محل کا تھانہ جو ہے وہ سب سے مہنگا تھانہ گنا جاتا ہے. تھانہ؟ ہاں, کیونکہ اس علاقے سے ہر گاؤں کے ہر گھر سے لوگ جو ہے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ذرا سی بات پہ لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں رشوت کے طور پہ. اسی طریقے سے اس علاقے کی برفی بڑی مشہور ہے جی, اور پورے پنجاب کیا پورے پاکستان میں گوجرے کی برفی جو ہے نا جی, برفی کا بڑا تذکرہ میں نے سنا, وہ کند برفی ہے نہیں مہند جی. اور اس برفی کی جو ہے جو وہاں کے شاپ کیپر ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کسی شخص کو بھی 1 کلو سے زیادہ نہیں دیتے. تو انہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے انہیں کہیں کہ ہمیں 10 کلو دے دو, کہتے نہیں جی 1 کلو ہے تاکہ باقی لوگوں کو بھی ملے. اتنے پابندی ہے جی برفی لین تے, لوگوں نے اپنے پرمٹ بنائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سارے اتنے لائسنس بنے نے انہوں نے, 1 کلو تو زیادہ لینی ہوئے تو ڈی سی او تے سائن کراؤندے نے, لائسنس بن گیا. بلکہ اینی کہ مٹھائی ڈی سی او نوں بھی دیندے نے. پولیس والے جی ناکے تے بندے نے روک کے منہ سونگدے نے, منہ سونگا برفی تے نہیں کھادی تو, برفی سگرٹ چ پا کے پیندے. اتنے تو سر برفی جب کارخانے بنا کے باہر لے آتے نا, نال پوری پولیس کی گارد ہوں, 6 سپاہی ادھر 6 ادھر گنا تنی ہوں. برفی پلا آؤں کہڑی گڈی سے جی بینک کی گڈی نہیں ہوں, سیکورٹی لکھا ہوں برفی آؤں. برفی کی اتنے عزت بڑی ہے سر, برفی کھان تو پہلے انہوں سلوٹ پائی تھی. ویسے یہ بہت بڑی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شاندار, مطلب یہ واقعی سوغات ہے, اور جس نے بھی جسے موقع ملے گوجرا جانے کا وہ برفی ضرور کھائے, اور وہی برفی جو اصلی ہے. سر جی ہوتے تے بچہ کھا رہے ہوتے پیو نو لوکی جا کے دھیان کر تیرا منڈا برفی تے لگ گئے. کاریگر کی کنی حفاظت ہوں برفی بنا, کاریگر نو تے باہر نہیں آن دے جی میں ایٹمی سائنسدان. ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, آج ہمارا موضوع ہے بھوک, افلاس, جس کے بادل امڑتے چلے آ رہے ہیں پاکستان کی طرف. دس از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کسی وقت میں کچن آف دا ورلڈ کہلاتا تھا. یہ خطہ دنیا کا زرخیز ترین خطہ, یہاں 7 دریا بہتے تھے, اور آج ہم بھوک کا شکار نظر آتے ہیں, اور بڑی ہی الارمنگ سچویشن ہے. جی جمع صاحب, سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ بھوک کیا چیز ہے, اس کی سائیکی کیا ہے, نفسیات کیا ہے, اور یہ کس طرف لے کے جا رہی ہے اس کم نصیب معاشرے کو؟ بھوک انسانیت کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا دشمن, اور یہ ایک ایور لاسٹنگ کہہ لیں کہ ایک مسئلہ ہے, دنیا میں بڑھتا رہا, کم ہوتا رہا. اگر 1969 سے ہم پہلے دیکھیں, 1970 سے پہلے, تو دنیا میں کچھ 96 کروڑ لوگ بھوکے سوتے تھے. لیکن ڈاکٹر نارمن بور لال کی جو میکسی چھوٹے قد والی گندم نکالی جو پیداوار بہت زیادہ دیتی تھی, جو میکسی پاک یہاں پہ آئی, تو ڈاکٹر نارمن بور لاگ ایک ایسا آدمی ہے جس نے انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے, یہ سب سے زیادہ انسانوں کی جان بچائی ہے. سو اس کے بعد 2004 تک یہ جو 96 کروڑ لوگ 1969 میں زیادہ غریب تھے یا بھوک کا شکار تھے, وہ 2004 تک کم ہو کے 79 کروڑ رہ گئے. اور اس 79 کروڑ میں کم ہونے میں 2 ملکوں کا بڑا میجر شیئر تھا, اس میں چائنا اور انڈیا. لیکن 2004 اور 2011 کے درمیان ایک عجیب مطلب ایک بڑی فاسٹ قسم کی رائز شروع ہو گئی بھوک میں, اور اس وقت دوبارہ 1 بلین لوگ جو ہیں دنیا میں بھوکے سو رہے ہیں. اور اس میں اگر پاکستان کا نام دیکھیں تو 8 کروڑ لوگ ہیں جو اس وقت مطلب رات کو انڈر نرسڈ ہیں یا تھوڑا کھا کے سوتے ہیں. منیمم ریکوائرمنٹ آف فوڈ کے مطابق اگر دیکھیں, حکومت پاکستان کہتی ہے کہ 2150 کیلریز خوراک جو ہے پاکستانی ایک آدمی کو کافی ہے. یہ ہم نے ایک لیول اچیو کیا 2001 تک, جس میں ہم کوئی 1900 کیلریز تک چلے گئے. 1900 سے اب 2011 مطلب 2011 اور 2001 کے درمیان دیکھیں تو ہم اس وقت 1600 کیلریز پہ ہمارے ہاں آ گئی ہے. مطلب ہمارا 300 کیلریز کا ڈیفیسٹ ہے. دوسری بڑی بات قسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں اگر دیکھیں 2001 کو, تو 2001 میں جتنی خوراک پاکستانیوں کو چاہیے تھی 2150 کیلری, وہ پاکستان میں پیدا ہو رہی تھی. اور اس وقت پاکستان میں جو خوراک پیدا ہو رہی ہے وہ 2600 کیلری پر کیپیٹا مل سکتی ہے. اب 2600 کیلری اویلیبل ہے, لیکن لوگ کھا رہے ہیں 1600. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوراک پاکستان میں موجود ہے, لیکن لوگوں کو بائنگ پاور کم ہے اور لوگوں کی ایکسیس میں نہیں رہی, اور بعض لوگوں کی بائنگ پاور زیادہ ہو. ڈسپیرٹی آف انکم جو ہے یا ان ایکویلٹی آف انکم جو ہے, اس نے اس کو اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ اب مطلب بھوک جو ہے روزانہ بڑھ رہی ہے. سو یہاں پہ اس وقت پاکستان میں 38% بچے جو ہیں اس وقت انڈر نیشنل, اس میں سے 12% بچے جو ہیں وہ مطلب سیویئرلی انڈر ویٹ ہیں, گروسلی انڈر ویٹ. جو بھوک کے معاملے میں ایک مسئلہ ہے, یہ بدقسمتی ہے کہ بھوک لوگ اسے سمجھتے ہیں جو ٹی وی پہ آ رہی ہو, جو لوگ مانگ رہے ہیں, جن کی ہڈیاں نکلی ہوئی, جس طرح کی افریقہ میں نظر آتی ہے, ایتھوپیا میں نظر آتی ہے, اس طرح کی بھوک بیسیکلی دنیا میں صرف 8% ہوتی ہے.
ہوتی ہے. 92% भूख जो होती है दुनिया में वो होती है कि वो लोग किसी को बता नहीं रहते, पड़ोसी को नहीं बता रहे, किसी को रिश्तेदार को नहीं बता रहे, इज्जत बचा के बैठे होते हैं और भूखे होते हैं. अब अगर पूछे कि ये हैं कहाँ पे, अक्सर लोगों का सवाल है जी कहाँ भूखे रहते हैं. 50% किसानों में भूख है, यानी फूड पैदा करने वाला खुद भूखा है. 20% लोग वो हैं जिनके पास जो मज़ारे हैं, और 10% लोग वो हैं जो भेड़ें चारते हैं, जंगल में लकड़ियां काटते हैं, ये फिशरीज चरवाते हैं. और 25% लोग ऐसे हैं जो शेंटी टाउन्स में, कच्ची बस्तियों में, बड़े शहरों की सबर्ब में रहते हैं. 25% लोग वो भूखे हैं. ये भूख की डिवीजन है. गंदम की अगर बात कर लें, 119 किलो अवेलेबल थी 2001 में सालाना एक आदमी के लिए. इस वक्त 140 किलो अवेलेबल है. अच्छा. लेकिन उस वक्त आदमी खा रहा था 108 किलो. ठीक. और इस वक्त खा रहा है 93 किलो. 108 से हटके जो गंदम सबसे सस्ती फूड है, या उसकी मतलब जिसे कहते हैं हर बंदा खाता है, वो 108 की बजाय वो नीचे, और उसकी रिक्वायरमेंट है 117 किलो. 117 किलो उसकी रिक्वायरमेंट है और खा रहा है वो 93 किलो. वो इसलिए है कि उसकी कुव्वत खरीद. इसका मतलब है कि उसको सिर्फ रोटी जिसे कहते हैं, मतलब गोश्त या मतलब चीनी या दूसरी चीजें छोड़े, प्रोटीन, उसको सिर्फ रोटी भी अवेलेबल नहीं है. ये गुर्बत मतलब किसी भी पैरामीटर से देखें, दुनिया की किसी रिपोर्ट में देखें, तो जो बदकिस्मत मुल्क जिनका सबसे ऊपर नाम है उनमें इस वक्त पाकिस्तान का नाम भी मौजूद है. सर, इसका सद्देबाब बताइए कि अब हमने क्या करना है. जो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करता है वो खुद भूखा है, तो हम उसकी किस तरह से मदद कर सकते. इस वक्त जो ताजा तरीन 2 हीरो दुनिया में पैदा हुए हैं, इसमें हुजेंताओ का नाम आता है और दूसरा लूला, मतलब जो ब्राजील का प्रेसिडेंट है. उन्होंने कहा जी हम वी नीड जीरो हंगर, और जीरो हंगर की बेस के जीरो हंगर का इनिशिएटिव जो है चाइना एंड ब्राजील. इस वक्त जो मुल्क बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें उसके नाम सुन के बड़ी आपको हैरानगी होगी. इट्स माली, मलावी, ग्वाटेमाला, इसमें आप कह लें इथोपिया, दूर तक पाकिस्तान, ज़ैम्बिया, मतलब ये सारे मुल्क ऐसे हैं कि अगली, हाँ, कीनिया ने इसे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है कि जी हमने जीरो भूख, वी नीड जीरो भूख. और आजकल अफ्रीका के अक्सर मुल्कों में जो इलेक्शन का सबसे बड़ा इशू है, इलेक्शन लड़ते वक्त, वो ये है कि जी हम जीरो भूख पे जाएंगे. जीरो हंगर. तो हमारे यहाँ ये जो 18 करोड़ गोबियां हैं, इन्हें कोई एहसास नहीं है इन्हें वोट देते वक्त हंगर. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पूछा कि भूख खत्म कैसे हो सकती है. भूख में खत्म होने में सबसे पहला जो है कि एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस ये रिकग्निशन हो कि हम वाकई भूखे हैं. मैं समझता हूं कि जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का और इमरान खान साहब का जो इलेक्शन का मतलब इशू होना चाहिए, जीरो हंगर की ये बात करेंगे, उसकी बेस पे अगर इलेक्शन लड़ें तो ये भूख खत्म हो सकती है. अगर अदरवाइज ये मेहनत इस तरह बढ़ रहा है. फिर दूसरा ये है कि एक तो हो गया लीडर, टॉप लेवल लीडरशिप के लेवल पे. दूसरा मैं समझता हूं कि अभी तक इसमें मीडिया जो बहुत ज्यादा मतलब आप कह ले विजिलेंट है और बड़ा परफॉर्म कर रहा है, मीडिया में भी उस लेवल पे इस इशू को अभी तक अटेंशन नहीं मिल सकी. मैं जियो का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये एक सबसे बड़ा इशू उठाया है और इसे लेके आगे चलने की जरूरत है. अब इसमें कंट्रोल कैसे करना है, ये इन दो चीजों के बाद कि 3 पिलर स्ट्रेटेजी ये है कि आप फूड प्रोड्यूस करें, ज्यादा प्रोड्यूस करें. दूसरा ये कि इसको एक्सेस करें, मतलब लोगों को अफोर्डेबिलिटी में लेके आए. आपको हंगर का, भूख का जो साइकिल तोड़ना पड़ेगा कि साइकिल टूट जाए. अगर एक बार बंदा भूखा हो गया है, इनिशिएटिव लूज कर गया है, एनर्जी लूज कर गया है, तो उसके बाद वो भूखे पैदा करता जाएगा, आगे नस्ल बढ़ती जाएगी. इस हंगर को और इस गुलामी का जो तौक है भूख का, जो दुनिया की सबसे बदतरीन गुलामी है, इसको तोड़ना पड़ेगा. ये तोड़ के तो लीडरशिप और मीडिया इसमें रोल प्ले करे तो ये पाकिस्तान में कोई बड़ा लंबा टारगेट नहीं है. जिस तरह की हमारे पास जमीनें हैं, पानी है, कोई मुश्किल नहीं है. इट्स मैटर ऑफ ओनली 3 years कि हम हर लेवल पे स्कूलों में मील्स दे सकते हैं. मैं समझता हूं सर, इनकॉम्पिटेंट लोग भी रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं अगर नीयत अच्छी हो, करप्शन से जान छूटे इस माशरे की. कोई कॉम्पिटेंट हो, इनकॉम्पिटेंट हो, हर कोई करप्शन के गंद से लिथड़ा पड़ा है, और जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी ये सिलसिला भी इसी तरह चलता रहेगा. ये अनफॉर्चुनेटली वो काम जो हुकूमतों को करने हैं, हम ये काम भी मीडिया पे बैठे गला फाड़ के हम गुजारिशें करते चले जा रहे हैं उन लोगों से, फिलैंथ्रोपिस्ट्स को, कि खुदारा उन एनजीओ से गुजारिश कर रहे हैं कि आप इनिशिएटिव्स लें, ह्यूमन राइट्स पे भी जोर दें, वो सारे मामलात अपनी जगह पर, एजुकेशन, हेल्थ अपनी जगह पर, लेकिन खुदारा फूड क्राइसिस को, भूख की साइकी को समझिए. ये नादार कौम बनती चली जा रही है और ये काम हद से ज्यादा बढ़ गया, जैसा कि चीमा साहब ने कहा है, तो फिर ये इरिडीमेबल हो जाएगा, फिर ये हमारे बस से बाहर होगा. ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस. वेलकम बैक. जी,
बाखबर जराए ने इंकशाफ किया है कि APC इजलास के दौरान मुख्तलिफ सियासी शख्सियात जनरल कयानी को विजिटिंग कार्ड दे देकर मुलाकात का वक्त मांगती रही। वाह जी वाह, वैसे साढ़े मुल्क से हो की गया जनाब? बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है, और ये एक रिवायत है हमारी इस पॉलिटिकल एलीट की, और ये आज की बात नहीं, आज से 4000 साल पहले भी एस्टेब्लिशमेंट को देखते ही ना बिछते चले जाते हैं ये लोग। सिकंदर यूनानी जब यहां आया था, 500 सरदारों ने उसके सामने हलफ उठाया था कि हम आप ही के गुलाम हैं, आप ही के बिहाफ पे लड़ेंगे। वो जी बहुत बड़ी जमात का सरबराह पीछे पीछे टाइम मांग रहे थे जनाब। वो कौन साहब थे? वो जी ना नहीं दसना, मैं अंदर होना तो पहले केड़ा तुसी बाहर फिरदे नीली गड्डी च बिठा के लाएंगे ना किले दे विच बंद कर देंगे। अच्छा, क्या वो कर क्या रहे? ये सारे सियासतदान क्यानी साहब टाइम लै गए, कोड़े रह गए। ये तानू मौला ने बड़ा देना, मैनू भी टाइम दे दियो। ये मैं बड़ी बड़ी जमात का सरबराह हुआ जनाब। क्यानी साहब दे दियो, ने ते हाथी कप धोण वाला कर लिया। ये क्यानी साहब दे दियो टाइम, अल्लाह ताड़ी जीवे जिंद जवानी। हां जी, दे दियो इनको वर्दी धोण वाली दे दियो। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਨੇ ਵਰਦੀ ਧੋਂਦਿਆਂ ਪਾੜ ਦੇਣੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। बड़ी देर तो 3 घंटे तो लाइन च लगे हैं। खुदा दा वास्ता नहीं, उसका हक पहले हकीम साहब को मिलेगा टाइम। अगर ये मेरे बस में होता ना तो मैं हकीम साहब को टाइम दिलवा। टाइम क्या आप 2 घंटे बाद बोलना है, तुम बोलते ही नहीं ठीक। इस वक्त वो आप गुस्ताख। और बात सुनो हकीम, तू कोई गाना गा सकता है तो गाना गा के इम्प्रेस कर। क्या नहीं साहब टाइम दे जा, क्या नहीं टाइम दे जा। सुर में नहीं। हाँ जी, सुर में नहीं। सुर में लगता है तुम्हारी क्लास लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये अब ये काम ना शुरू कर दीजिए। मौजूद हूँ यहाँ पर। ये काम ना शुरू करें। नहीं, चलो। ऐसी नजर से देखा, लगता बकरा सुता उठे। लगता जुमे का दिन ते अन्ने मंगन डे। वाह वाह वाह, ये क्यानी साहब इन्ने ते लानत विचों मेरी गल सुनो जनाब। बुर फटे मुंह, बुर फटे। अच्छा, आप चुप रहे, उसे बात करने दे। क्यानी साहब सानू टाइम नहीं देंदे, उन्हें वेला देन लग पे हो। हाय हाय जियो पे। ए सानू टाइम दे दो, अल्लाह जीवदे रहो तुसी। वैसे हकीम साहब, जितनी मेहनत आपने की है ना, लगता है आपको टाइम मिल जाएगा। साडा तुसी सर ज्यादती करवा रहे हो, तुसी उन्होंने टाइम लेके दे रहे हो सर। उन्होंने जिस तरह का तरला किया है आप नहीं कर सकते। ये सानू टाइम दे दियो, मौला दा वास्ता जी। सर खुदा के लिए इधर देखे जी, सारा देखो। हाँ जी, ये क्या कर रहे हो? ये देसी मुर्गा जी, मुंह से आवाज भी निकाल। कान छोड़ो। ए वाहद कुकड़ जेड़ा आप यखनी पींदा है। सर मेरे उत्ते भावे 500 इट भी रख दे, लेकिन टाइम दे दियो ताड़ी मेरे। अच्छा, मिल जाएगा टाइम। ए वाहद कुकड़ है जेड़ा खुड्डे च चरस वेचदा है। खबर है कि एक शहरी को जबरदस्त तशद्दुद का निशाना बनाने पर रेमन डेविस की अमेरिकी मीडिया के हाथों गोशुमाली। हेलो, उन्हें अपने मुल्क च जाके भी वही काम शुरू कर देते। ओ भाई, जिस तरह ਤੁਹਾਡਾ मीडिया झूठ बोलता है, अल्लाह दे बंदे, मैं ਤੁਹਾਡਾ मीडिया अमेरिकन भी झूठ बोलदा ना। ओ भाई, तू हर जगह पाकिस्तानी समझी, इथे ਅਸੀਂ मार खा के चुप कर जाएंगे, उन्होंने तो तेनू अगो छित्र फेरने। अच्छा, तुम इस वक्त रेमन डेविस बन गए हो? और मैं की बेवा बांदरी बन गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇਵਨ ਡੇਵਿਸ ਤੱਤੇ ਤਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਵਨ ਡੇਵਿਸ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ। रेमन डेविस ते फिक्के केक बेचदा शुगर के मरीज़ां ने, शुगर हस्ते। रेवन डेविस चंद ते जाके नहीं वाशरूम किथे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੇਵਨ ਡੇਵਿਸ ਕਸੀਨੋ ਚ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। जी। खबर है कि कोलंबिया के शहर बगोटा में खच्चरों के इलाज मुआवजे के लिए मोबाइल हॉस्पिटल मुतारिफ करवा दिया गया। सर, इसका मतलब है कि खच्चर अब डॉक्टरों को अपनी बीमारी भी खुद बताएंगे। तो और खच्चरों का पड़ोसी आके बताएगा। तो खच्चर आके कहेंगे सर जी दसना जर मेरे अद्धे सिर च पेन हो रही है। ना मैनू जिरकान हो गई, मैनू हिपेटाइटिस सी है। ये हिपेटाइटिस क्या होता है? किसी हिप्पी नु होया होना जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਕੀ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਹ ਹੀ ਖਾਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਖਾਣਾ ਮਾਮਾ। डॉक्टर भी अगो कह रहा था तेरे अक्षरे हरे हरे ने। हाँ नहीं, खच्चर ना गल कर, मैनू क्यों पसंद। आप अपने लो शेर बन के बैठे। हाँ, शेर ते लत वड्डी शेर ते जंजा भी मांग लो। शेर ते लंगर दी लाइन च भी लगे। शेर ते बांदर नूं कहंदे हुंदा मैनूं जोगर लै दे, मैनूं कंडे चुप। बंदर उसका बाप है? नहीं जी, उसको पैसे होंगे।
तो उसके पास कहां से आते? वो जेबा शेबा कटता नहीं। शेर ते बनाना बेचता, शेर ते पंप ते लगा सिर्फ वैपर मारदा। शेर ते बड़े पुत्ते नु कहंदा मैनू भौंकना दस दे, मैं नौकरी लग जा। ते कुत्ता रियाज कराउण लग पिया। नहीं, इसका क्या मतलब भौंकना? 10 दे क्या मतलब? सर इसका मतलब है कि भौंकना सिखा दे, कहीं मेरी नौकरी लग जाए। शेर ते खुसरे पीछे ढोलकी बजाउंदा है। शेर ते फंक्शन ते नवीं कापियां लेके जांदा। कापियां क्या? नोटां वालियां कापियां जेड़े जी। हां जी 100 ते 90 दिंदा जी। डॉक्टर भी खच्चरां ने जुगतां लाउंदे होणगे, बड़ी तेरी पूछ ले भी रिक्शे दी केकर गई। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੱਚਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਝੜਦੇ ਆ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। पंजाबी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर ने रिश्वत और करप्शन के मौजू पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। हाँ जी जनाब, फिल्म बनानी मैं। आपको किस अहमक ने कहा कि आप इस सब्जेक्ट पे जानते हैं? कोई रिसर्च किया आपने? और सर सारे ऐसी करप्ट इधर फिल्म बनावांगे। वो तो हैं आप, लग रहा है, शक्ल से लग रहा है कि आप फिल्म मेकिंग में भी करप्शन करते हैं। अच्छा, मैं करप्शन से जेडे नाल बैठे हो नहीं लगते? और आप फिल्म बनाए फिल्म। अच्छा आला है। जी ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਰਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਮੁਹਾਰਰ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ। ਨੌਨਸੈਂਸ ਆਦਮੀ ਖਾਕੀ ਲਫਾਫੇ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਤੂੰ। ਕੈਮਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੁਹਾਰਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਟਿਲਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਕੈਮਰਾ ਇਥੋਂ ਟਿਲਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ। 3 ਫੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਦੀਆਂ, ਮੁਹਾਰਰ ਦੀਆਂ। वाह वाह वाह, ते इत्थे गाना होया 3 फीतियां तेरे खून खून। क्या गाना यार, कहाँ गाइएगा? ਕੱਟ ਕੈਮਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗਏ ਆ। वाह, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ? हाँ जी, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ। ये सारे वैसे किसी एक कमरे में बैठे हुए? एक फ्लैट ਸਾਰੇ च रहिंदे ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੜ ਲਿਆ। 20 ਲੱਖ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਹੈ? करीना कपूर 20 लाख लैंदी है। ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। आते आता ਕੈਮਰਾ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। क्या? ਕੈਮਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਐਸਾ ਸ਼ਾਟ ਕੋ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਟਕਿਆ ਜੋ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੀਆਈ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਲਵਾਏ। ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੈਮਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਮਰਾ ਗਿਆ ਰਨਵੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੌੜਿਆ, ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਭੌਂਕਦਾ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਤੇ रोस्टर बैठे। वो छत पे क्यों बैठी? अंदर सीट ही कोई नहीं, पायलट आप बेचारा मूड़े ते बैठे। हाँ जी, अपना कैमरा किथे खजल करना है जी? ਕੈਮਰਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਲਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। वाह ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। वाह वाह वाह। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੌਰੀਆਂ ਸੁੰਘਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਾਹ, ਆਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਫੇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗਏ ਆ, 2 ਮੁਸਾਫਰ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਂਚ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ। ਮੁਸਾਫਰ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤਤੀਰੀ ਪੈਂਦੀ। ये ततीरी क्या होती है? ओवरफ्लो, पानी का ओवरफ्लो। नुसरत खान ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? नहीं। ਉਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਤੀਰੀ 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 ਉਹ ਤੀਰੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਨੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਤੀਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਪੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਗਨੇਰੀਆਂ ਚੂਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬੜੀ, ਬੰਦਾ ਲਾਹ ਜੁੱਤੀ ਲਵੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। आपने शॉट लेना है कि नहीं? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਨ ਲੈਣ ਗਏ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰੇ ਜੰਮੂ ਪਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ।
ट्रैक्टर फिल्मा नहीं मिलती, कैमरे च ठीपे जोड़न लग पैंदे। ठीपे किसी को समझ नहीं आते। करेंसी कॉइन ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣਗੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾ। डायरेक्टर साहब शुरू करें। शुरू कट्ठा करें जनाब। कैमरे का खाना खराब करता है, कैमरे को पता नहीं की बनाता है। कैमरे के हमाम भी बनाता है, तौलिया भी रखे है। ਅਸੀਂ कैमरा चुके जी। ਹਲੋ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਰਲਾ ਖੋਤਾ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਿਆ। ਵਾਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, कैमरा गरीब ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਵੇਚਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾ ਲਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਖੁਸਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा ख्वाजा सरा होता है, आइंदा ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल। ख्वाजा तेनू अखियां उड़ीदियां, ख्वाजा तेनू अखियां उड़ीदियां, दिल वाजा मारदा। तौबा, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ। शाह साहब ਤੁਸੀਂ ਇਸ तकलीफ ਦਾ इलाज तकलीफ नहीं है बेटे, जेलस नहीं हो। अच्छा शाह साहब आपका ये आइटम नहीं, आप खामोश रहिए। ਲੋ ਜੀ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਗੁਸਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਬੱਤੀ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਬੱਤੀ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ। ਚਾਰ ਖੁਸਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਾਸੂ, ਕਿਧਰੇ ਕੇਸਟਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਦੇ ਡੈਕ, ਕਿਧਰੇ। और डायरेक्टर साहब कैमरा। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। और जी मैं खुसरे ने थोड़े निकल के कैमरा लाके दरख्त पे चढ़ गया। दरख्त पे क्यों चढ़ा, तू बांदर है? बाबा खुसरियों को बचने का यही तरीका है। खुसरे ने कहा कि आज तेरी लोड़ पै गई, तू दरख्त पे चढ़ गया। खुसरा तो शेर दरख्त नहीं चढ़ सकता।